On behalf of School of Media and Communication Studies, Pimpri Chinchwad University, I, Nidhi Varagade, welcome you to today's webinar on career in regional journalism, featuring our expert speaker and esteemed journalist, Mr. Ravi Tiwari sir. Pimpri Chinchwad University, an integral part of PCET network, celebrates a 33-year tradition and education excellence. As a key institution in PCET's long-standing education legacy, we are dedicated to developing the future leaders. Our university consists of several prestigious schools, each focused on excellence in their specific areas. These include School of Engineering and Technology, School of Management, School of Design, School of Sciences, School of Liberal Arts and Humanities, and School of Media and Communication Studies. In our School of Media and Communication Studies, we offer diverse range of programs designed to keep in pace with the changing needs of media industry. The programs such as BA in Journalism, Media and Communication Studies, BSc in Animation, VFX and Multimedia Sciences, BBA in Advertising, Events and Public Relations, and BBA in Digital Filmmaking are the courses that are offered. Now we invite you today to explore the latest trends and the opportunities in the area of media for our upcoming webinar. But before we start, let's have a small glimpse of a prestigious university. I'll just be playing a short video of the university. Can you see the screen? Yes, ma'am, it is visible. Yes. The Pimpri Chinchwad Education Trust has established a state-private university known as Pimpri Chinchwad University at Sate, Vadgaon Mawar in Pune Metropolitan Regional Development Authority. It is a 30-acre campus of academic facilities and amenities for students and teachers to help them to achieve their fullest potential. The Pimpri Chinchwad University campus is well connected with the cities Pune and Pimpri Chinchwad by road through Mumbai-Pune National Highway number 4 as well as Mumbai-Pune Expressway. Also, railway station Kanhe is at 1 kilometer distance. The nearest airport is Pune Airport. PCU has its different verticals which prepares leaders from different fields. School of Engineering and Technology. School of Design. School of Media Arts and Communication Studies by incorporating cultural activities, events and organized tours and trips, fostering a holistic development approach. In a sense, Pimpri Chinchwad University is not just an institution. It is a vibrant ecosystem that nurtures talent, fosters creativity and provides a platform for students to thrive in every aspect of their academic journey. PCU Bus Transport provides service across the city. Pimpri Chinchwad University
transformative education that empowers success in a rapidly evolving world. Yeah. So that was the university. Before we begin the program, I'm pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, our Pro-Vice Chancellor, Dr. Sudeep Debde sir, respected deans, directors, head of institutions, faculty members, and all the students who have joined with us here today. This webinar aims to provide deep insight into the field of journalism, offering a highlight about the career opportunities available in the regional journalism. And now, it's my great pleasure to welcome Mr. Ravi Tiwari sir, a distinguished senior journalist. Mr. Tiwari has held the position of editor in Live India and Me Marathi news channels, dedicating many years of regional journalism. He has also served in prominent roles at major news organizations like Chief of Bureau at India TV and Senior Special Correspondent at NDTV India. Currently, Mr. Tiwari lends his expertise as a consultant and advisor to several TV news channels such as TV9, GRTV, and VIP News, as well as various corporate groups. He is also the founder of Radiance Vision Company, which specializes in branding and corporate films. The role of a journalist extends beyond merely delivering news. It involves playing a crucial role in societal reform. A journalist serves as a catalyst for the change from local to global level. And today we are fortunate to have Mr. Tiwari with us, a journalist whose significant contribution and vast experience in media have made notable impact. We welcome you, sir, and we are keenly looking forward for your insightful session. Now I request another notable media person, RHOI, School of Media and Communication Studies, Pibri Chinchwad University, Mr. Narendra Bandabur, sir, to please proceed with the session. Thank you, Nidhi. Thank you. रवि जी, आपका स्वागत है हमारे पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी में और स्कूल ऑफ मीडिया में। आज की जो बातें हैं दो चीजों पर होगी। एक चीज जो एक पत्रकार बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और आपका जो अनुभव है भाषिक, जैसे हिंदी और मराठी में जो आपका अनुभव है एक मीडिया हाउसेस चलाने का, मीडिया टीवी न्यूज चैनल जो है उनको चलाने का, तो उससे कुछ चीजें हमें सीखने मिले। ये हम आपसे आज इस वेबिनार में इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो कि आप एक पत्रकार रहे और हमारे जितने भी अभी जो ज्वाइन हुए उनको पत्रकार बनना है, तो एक पत्रकार बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, आपको क्या स्किल्स होने जरूरी है आपके पास? आपका माइक नहीं चल रहा, आपका माइक नहीं चल रहा। आपका माइक नहीं चल रहा, माइक 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 म्यूट है म्यूट है म्यूट है म्यूट। अभी आ रही मेरी आवाज आपको? हाँ, अभी आ रही है। ओके। तो सबसे पहले तो धन्यवाद इसके लिए कि आपने अपने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया है। एक जो आपका सबसे अहम सवाल रहा वो कि आखिर क्या और किस चीज की जरूरत होती है खासकर एक जर्नलिस्ट बनने के लिए, एक रीजनल जर्नलिस्ट बनने के लिए। तो मैं भी कहूँगा कि जज्बा, सोसाइटी में कुछ एड ऑन करने का जज्बा, ये सबसे बड़ी चीज होती है एक जर्नलिस्ट के लिए। शायद मेरी पूरी जनरेशन जो आई थी इंडस्ट्री में उसका यही टारगेट ही ये था कि वो कुछ देना चाह रहे थे इस समाज के लिए। तो अगर आप में वो जज्बा है तो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छा सा आप लोगों ने जो अपने इस वेबिनार में सवाल उठाया है कि रीजनल जर्नलिज्म, तो मैं नरेंद्र जी ये कहूँगा कि भविष्य जो है वो अब रीजनल जर्नलिज्म का है, क्योंकि जिस तरह से डेटा फ्री हुआ है, सस्ता हुआ है, जिस तरह से चीजें जो ग्लोबल है वो लोकल की तरफ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं रीजनल मार्केट और रीजनल भाषा इन दोनों का बाजार बड़ा हो रहा है।
तो अवसर और अपॉर्चुनिटीज दोनों जो है सबसे ज्यादा आ रही हैं, खासकर रीजनल भाषाई पत्रकारिता को लेकर रखते हैं। तो मेरी शुरुआत आमतौर पर शुरुआत ही मैंने भाषाई पत्रकारिता से की थी, हिंदी से, मराठी से। तो मैं ये कहूंगा कि एक बड़ा सुनहरा मौका है और एक अच्छा वक्त है इस वक्त में, जब लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, क्योंकि रीडर भी बढ़ रहे हैं, व्यूअर भी बढ़ रहे हैं, और इसके साथ कंटेंट का बहुत वास्ट शुरुआत हुई है अभी। नरेश जी। रवि जी, एक आपकी आवाज टूट रही। टीवी मीडिया भी आप सवाल फिर से किया रिपीट कर। होती थी, आज उसकी जरूरत नहीं। हाँ जी, आपका आपकी जो पूरी जर्नी है वो टेलीविजन, एज ए पत्रकार, टेलीविजन के पत्रकार आपकी जो जर्नी है, उसके साथ साथ टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री भी बड़ी है। यानी बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे उस समय, 3 लोगों की टीम हुआ करती थी। उससे लेके आज मोबाइल में आपका या फिर का जमाना आने तक, ये क्या क्या बदलाव आपने इसमें अच्छे बदलाव देखे हैं जो एक पत्रकार के लिए एक फायदेमंद हो सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज ये रही नरेश जी, कि पहले जब हमने शुरुआत की थी इस पूरे इंडस्ट्री में अपने करियर की, तो 5 लोगों की टीम चलती थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट, कैमरामैन, कैमरा असिस्टेंट और कैमरा अटेंडेंट, जो एक बड़ा सा स्टैंड लेके चलता था, जिसका वजन करीब 22 किलो के आसपास था, 22 kg के आसपास था, और उसमें एक जर्नलिस्ट। तो आज जो सिनारियो बदला है, जो मोजो न्यूज का पूरा कॉन्सेप्ट आया है, कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब अकेला जर्नलिस्ट ही कैमरामैन भी है और कंटेंट क्रिएटर भी है। वो अपने स्क्रिप्ट राइट भी करता है और वो सीधे उसे लाइव भी कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑल इन वन का वो चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। इसमें एक चीज रही कि कंटेंट में जो है, अब जो जर्नलिस्ट देना चाहता है वही कंटेंट अब एयर पे भी जाता है, लाइव भी होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है, खासकर एक गुड कंटेंट को लेके अगर बात करें। तो सिनारियो अगर वैसे कहें तो हम एक जो बहुत बड़ा न्यूज रूम की जरूरत थी, जिस तरह से पीसीआर, एमसीआर और बहुत सारे लोगों की, मेरा 2004 से लेके 2009 के बीच का जो एक टाइम था, उसमें एक हिंदी चैनल के स्लॉट में हम मुंबई का जब एक बड़ा ब्यूरो चला रहे थे, तो उस वक्त में हमें सिर्फ जर्नलिस्ट और टेक्नीशियन सब मिला के हम करीब करीब हम लोग 100 एम्प्लॉइज रख रहे थे। आज उसकी जरूरत नहीं है। आज फील्ड का रिपोर्टर ही आपका एडिटर भी है, जर्नलिस्ट भी है, वॉइस और आर्टिस्ट भी है, वो कंटेंट राइटर भी है, और वो वहीं से, उसे किसी एमसीआर पीसीआर की जरूरत नहीं है। वो वहीं से लाइव भी कर सकता है, अपने स्टोरी को जो है वो अपलिंक भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत कुछ चेंजेस आया, एक एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी इंडस्ट्री का अभी। नरेश जी। ये तो आपने पूरी जर्नी देखी है ये पूरी। मैं ये चाहता हूँ रवि जी, आप, क्योंकि आप हिंदी पत्रकारिता में और हिंदी चैनल के सेटअप्स में आपका योगदान बहुत बड़ा है। उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स उसके तहत आते हैं, हिंदी या फिर किसी न्यूज चैनल की, वो आप उस डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताइए। एक चैनल के लिए जो है एक बहुत ही एक टीम वर्क का काम तो होता ही है, लेकिन उसमें उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा होता है टेक्निकल और दूसरा हिस्सा होता है कंटेंट क्रिएट। एक तीसरा हिस्सा भी होता है जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट का हिस्सा बनता है, जहां से फंड आना होता है। तो आप इसको करीब, एक चैनल को आपको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले टेक्निकल टीम में वो फील्ड पे काम करने वाला कैमरामैन आपका होता है, वो आपका ओबी ऑपरेटर होता है, ओबी वैन के लिए। इसके साथ ही आपकी ड्राइविंग टीम से लेके पीसीआर, एमसीआर और एक लाइब्रेरी की पूरी टीम, एडिटर्स,
ये पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा जो है वो टेक्निकल टीम का होता है। मुझे लगता है अभी भी एक अच्छे चैनल के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है। सेम कहानी होती है जब आप आते हैं कंटेंट की। जो सोल होता है आमतौर पर हिंदी न्यूज चैनल में और न्यूज चैनल के न्यूज रूम में एक चीज डिस्कस की जाती रही, वो रही कि कंटेंट ही किंग है। यानी एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है तो बहुत सारी आपको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बहुत सारे डिस्कशन करने हैं, रिसर्च की जरूरत है। तो यहां से शुरुआत होती है किसी चैनल के लिए एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, चाहे वो फील्ड से आना हो या फिर जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है न्यूज रूम रिसर्च टीम यहां से। तो एडिटर से शुरू करते हैं, हम टॉप टू बॉटम से आते हैं। तो किसी भी चैनल के लिए एक चैनल हेड की जरूरत है जो कि कंटेंट पे सबसे बड़ी नजर उसकी होती है। वो किसी भी चैनल की दशा और दिशा तय करता है कि क्या लाइन और लेंथ होगी उस चैनल की और किस तरह के वो बुलेटिन और किस तरह के कंटेंट को वो क्रिएट करना चाहते हैं। आमतौर पर जब एनडीटीवी में मैं था तो हमारे पास वहां पे बहुत ही फीचर स्टोरियों का फोकस होता था और ये होता था कि ऐसी खबरें की जाए जिसपे सोशल इम्पैक्ट ज्यादा है। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट उसी फॉर्मेट को मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो वहां पे एक स्टेशन हेड, चाहे वो सुपर ब्यूरो की बात हो या फिर स्टेशन हेड ऑफिस की, वो डिसाइड कर लेता था कि हमारी न्यूज इस तरह की होंगी और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। डू एंड डोंट्स पहले ही क्लियर हो जाते थे और टीम वहां से काम करना शुरू करती थी। वो मैसेज पास होता था आपकी चीफ ऑफ ब्यूरो के पास, आपकी कोऑर्डिनेशन टीम के पास, आउटपुट और इनपुट के जो लोग हैं उनके पास वो किया जाता था। एक आउटपुट जो है वो पूरा के पूरे जो कंटेंट फील्ड से आ रहा है उसे स्कैन करती थी और उसको क्या नहीं करना है ये इंस्ट्रक्शन फील्ड के रिपोर्टर्स के पास जाता था। इनपुट की टीम उसे फाइन ट्यून करते वक्त उसे समझ में ये आता था कि क्या नहीं डालना है। किसी एक खबर में बहुत सारे डोंट्स भी होते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचे, किसी खास वर्ग को चोट नहीं, खासकर उस खबर का कोई बुरा इंपैक्ट नहीं आए। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए इनपुट टीम भी उसी तरह से काम करती रहती थी और आखिर में तैयार होता था एक न्यूज कैप्सूल। तो यानी एक मल्टीपल लोग मल्टीपल लेयर पे काम करते थे, इसके बाद एक फाइनल कैप्सूल तैयार होता था जो अभी भी आप न्यूज में देख रहे हैं। हालांकि इन दिनों हिस्सा थोड़ा सा बदल गया है, करीब 3 से 4 घंटे अब स्टूडियो डिस्कशन में चले जाते हैं। लेकिन 2009 तक तो एक पूरी प्रक्रिया रही न्यूज रूम की कि अच्छा कंटेंट और फील्ड का कंटेंट लाना है। उसके लिए अभी भी डिजिटल कुछ प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, चाहे डीडब्ल्यू की बात करें, बीबीसी की बात करें, सीएनएन कई बार बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है, कुछ रीजनल चैनल भी कर रहे हैं लेकिन अभी थोड़े से कम कर रहे हैं। नरेंद्र जी। रवि जी, जब भी कोई पत्रकार एंटर करता है पत्रकारिता में, एक कोई भी छात्र पत्रकार होने की इच्छा ख्वाहिश रखता है, तो एक किसी एक विषय को लेके उसकी एक्सपर्टी बनती है। बाद में वो उसे बीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी जो चीजें उसको करनी है आगे जाके एज अ स्पेशलाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये बीट बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? लोग किस तरह से अपने कौन से एक तो बीट होते हैं जर्नलिज्म में, और किस तरह से लोग उसको चूज करते हैं अपनी चॉइस के अनुसार? नरेंद्र जी, दो चीजें बहुत मैटर करती है। पहली चीज तो ये है कि बीट चूज करने वाले जर्नलिस्ट का अपना इंटरेस्ट क्या है और कई बार उस इंटरेस्ट को वो और कितना अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है। आमतौर पर न्यूज रूम के जो बीट्स की हम लोग बात करें तो उसे बांटा जाता था। पहले तो एक जनरल बीट होती थी, दूसरी होती थी बिजनेस बीट। जनरल बीट में फिर एक मल्टीपल वेराइटीज होती थी, अभी भी वो चल रही हैं, जिसमें पॉलिटिकल बीट एक बीट बन जाती है कि जो स्टेट की और देश की राजनीति पे नजर रखने वाले रिपोर्टर होते हैं वो उस बीट पे काम करते हैं। आमतौर पर जिनका फंडामेंटल बड़ा स्ट्रांग होता है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आपकी लोकल सिस्टम कैसे काम करता है वो जानते हैं, उनके लिए बड़ी काम की चीज होती थी। दूसरी, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पसंद आता था तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट से लेके बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स रहे कई राज्यों में। अब चाहे पश्चिम बंगाल में लोग फुटबॉल्स को बहुत पसंद करते रहे या फिर महाराष्ट्र में और उत्तर भारत की तरफ देखे क्रिकेट एक बड़ा वो रहा, तो आपको वो नॉलेज गेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। स्पोर्ट्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इसके बाद आती है क्राइम, सिनेमा, फैशन। आजकल तो पिछले कुछ सालों तक तो टेलीविजन के जो सीरियल्स थे उनकी भी अपनी एक स्पेसिफिक बीट बनी हुई थी और बहुत ही अच्छा जीआरपी वो चैनल ला रहे थे कि अब क्या होने वाला है किसी चैनल में। तो
एक बीट तो यहाँ हो गई, सेम कहानी होती है आपके बिजनेस बीट में। वहां पे बैंकिंग, फार्मा, मार्केट और मल्टीपल चीजों के लिए स्पेशलाइज जर्नलिस्ट काम करते हैं। और टेलीविजन में अभी भी बिजनेस चैनल में तो आपको अलग से लोग मिलेंगे कि जो रिसर्च से लेके, फार्मा से लेके, मार्केट से लेके एक एक इंडस्ट्री पे फोकस जर्नलिस्ट है और वो उसी पे काम कर रहे हैं। तो बीट तो डिसाइडेड है। हाँ, जो रिपोर्टर होता है उसको चूज जरूर करना चाहिए। अगर वो ऑल इन वन बनना चाहता है तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ नहीं दे सकता। लेकिन स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है, खासकर अपनी स्टोरी, अपने इंटरेस्ट की स्टोरीज पे फोकस करता है। जैसे लाइफस्टाइल बहुत पॉपुलर बीट रही इन दिनों, तो बहुत सारे फूड चैनल्स जो हैं उसमें जो है स्पेशलाइजेशन फूड पे जा रही है, फैशन पे जा रही है। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए रिपोर्टर को अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए, खासकर अगर उसका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट नहीं है तो शायद वो अच्छा रिपोर्टर नहीं बनेगा। और उसको चूज अभी करना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है, और उसके लिए बहुत सारे उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड और हैपनिंग, क्या आज चल रहा है, ट्रेंड क्या है, ये अगर उसमें अपने आप को अपडेट करता है तो वो एक अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है। रवि जी, एक क्योंकि आप तो पूरे कॉन्सेप्ट से लेके ऑन एयर तक का जो सफर है वो आपने देखा है। तो हमें इस खबर की, यानी खबर स्टोरी आइडिया से लेके ऑन एयर खबर जाने तक की प्रक्रिया क्या होती है, ये हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाए तो बहुत बेहतरीन, उनको जानने में बहुत अच्छा होगा। और उनकी जो न्यूज़ के बारे में जो एक होता है कि वो जो फाइनल आउटपुट दिखता है वो ही एक उनको दिखता है। तो पर ये इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है वो हमें बताइए थोड़ा। नरेश जी, शुरुआत करते हैं एक XYZ किसी खबर को लेके। सपोज हम कोविड की कहानी को ले लेते हैं, जो मुझे लगता है कि पिछले करीब 3 दशक तक की सबसे बड़ी हैपनिंग रही है इंडिया में। दुनिया में भी रही है, लेकिन इंडिया में उसका इम्पैक्ट कुछ अलग तरीके से रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि एक डेटा आया सरकार का कि अब तक मरने वालों के जो नंबर्स थे वो करीब 2 लाख थे। लेकिन एक न्यूज रूम में डिस्कशन हुआ, मैं भास्कर न्यूज रूम डिजिटल की बात कर रहा हूँ, उस पर एक डिस्कशन हुआ कि क्या ये डेटा पे हमें काम करना चाहिए क्या। और अचानक एडिटोरियल टीम ने एक डिसीजन लिया कि हमें इस डेटा पे काम करना है, और इस डेटा को ये देखना है कि एक्चुअली जो डेटा आया है वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट के डेटा में तो है, लेकिन ग्राउंड पे उसकी हैपनिंग कैसी रही और किस तरह से ये डेटा सरकार के पास गया। तो पता चला कि रिपोर्टर ने मल्टीपल तरीके से काम किया। रिपोर्टर ने काम किया उन गांव, कस्बे, अपने इलाके और शहर की तरफ। पता चला कि वहां पे मरने वालों के नंबर जो हैं वो ज्यादा रहे। फिर रिपोर्टर ने पता किया कि वो हॉस्पिटल्स में जो डेथ सर्टिफिकेट इशू किए गए थे मरने वालों के, वो नंबर्स अलग बन रहे थे। इसके बाद रिपोर्टर ने कब्रिस्तानों और शमशानों का चक्कर मारा, पता चला वो डेटा अलग है। तो गवर्नमेंट के डेटा और इन डेटा को जब कोलैबोरेट किया गया तो पता चला कि नंबर में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। तो मैं सिर्फ एक न्यूज की हैपनिंग आपको मैंने बताया। इसी तरह से कुछ साल पहले एक पेट्रोल पंप आवंटन को लेकर बात हुई थी, उसमें भी यही हुआ कि अचानक इंडियन एक्सप्रेस ने एक प्लान किया कि हमें इस डेटा को वो करना है। ये हुआ एक न्यूज। लेकिन अब जब ये न्यूज रूम में आता है तो कैसे इसको प्लान किया जाता है। कई बार कुछ खबरें होती हैं जो एक टीम के साथ की जाती हैं, यानी एक रिपोर्टर नहीं मल्टीपल रिपोर्टर काम करते हैं। और कुछ खबरें होती हैं जो सिंगल रिपोर्टर के साथ। तो एक दिन पहले न्यूज रूम में तो ये होता है कि एक दिन पहले स्टोरी लिस्ट की जाती है कि आज हमारी जो है कल की डे प्लान में ये स्टोरियां हैं। सवेरे फिर से उस डे प्लान को एक बार रिवाइज किया जाता है और पता चलता है कि कल की लिस्ट एक स्टोरी की डे प्लान में आज मॉर्निंग में एक खबर जो है हमें ऐसा लग रहा है कि आज की डे ड्राइव होगी उस खबर से, यानी पूरे दिन की जो खबर होगी वो एक स्टोरी ड्राइव कर सकती है। तो वो उस पर हो सकता है मल्टीपल रिपोर्टर काम करें, या फिर कई बार उनको लगता है कि एक रिपोर्टर से ही उनका पूरा डेटा निकल जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। तो इन हाउस बैठी हुई टीम वो रिसर्च पे काम करती है कि कितनी डिटेल्स और हैं उनके पास, और फील्ड का रिपोर्टर कंसर्न लोगों को टच करना शुरू करता है। हो सकता है कोई बाइट मिले, कोई ऑफ द रिकॉर्ड डिटेल मिले, और उस डिटेल को वो कोलैबोरेट करना शुरू करते हैं। आखिर में आता है कैमरामैन से कि कितना विजुअल मिल रहा है, कितना डेटा मिला। वो सब चीजें 3 बजे के आसपास का, नॉर्मली न्यूज रूम में एक ETA का टाइम रखा गया है,
बड़ी खबर हुई तो 5 और 7 बजे तक भी झेला जाता है कि उसे वो किया जाए, लेकिन रिपोर्टर पे एक प्रेशर होता है कि 3 बजे तक आप अपनी खबर को कंप्लीट करिए और वो न्यूज रूम तक आ जाए। और फिर होती है उसके बीच में जो स्मार्ट रिपोर्टर, हम लोगों के वक्त में तो कई बार ये होता था कि हम पूरी रिपोर्ट्स को, स्क्रिप्ट को रास्ते में ही लिख चुके होते थे ऑफिस पहुंचने के पहले, और वो स्क्रिप्ट एक तरफ इंजेस्ट हो रही है रिपोर्ट, यानी जो आपके पास वीडियोस पड़े हुए हैं, जो डेटा मिला, शॉर्ट्स बाइट्स हैं, वो सिस्टम में इंजेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ रिपोर्ट को एक बार फिर से सीनियर टीम देख ले रही है कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। रीचेक हमेशा न्यूज ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, यानी रिपोर्टर ने न्यूज लिखी तो भी कॉपी एडिटर से लेके मल्टीपल लोग चेक करते हैं, क्योंकि गलतियां जाना, आप इतिहास में गलती करते हैं ये माना जाता है न्यूज़पेपर में। प्रिंट में एक रिटर्न गलती होती है और टेलीविजन पे कोई चांस ही नहीं होता कि आप लाइव पे चले गए तो फिर तो ना कटनी है चैनल की। तो इसे बचाने के लिए रीचेक किया जाता है, फिर खबर एडिट हुई, कैप्सूल बना, और उसे, इसमें कोई, मैं शायद बताने में आपको बड़ी आसानी से कह रहा हूं, लेकिन उस वक्त में रिपोर्टर से लेके पूरी न्यूज रूम के मल्टीपल लोगों के ऊपर एक प्रेशर होता है कि ये खबर हो सकता है कि 5:50 5:30 की टाइम बुलेटिन में ड्राइव पे जाने वाली है, हो सकता है 7 o'clock की बुलेटिन में ड्राइव, या फिर 9 बजे की बुलेटिन ओपन होनी है तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। वो एक प्रेशर बना रहता है सब पे, फट 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 सबको खबर उसे कंप्लीट करें। एडिटर एडिट पे बैठा हुआ है, कैमरामैन ने अपनी अच्छे शॉट्स निकाल के इंजेक्ट करवाने में रिपोर्टर की मदद की, रिपोर्टर ने स्क्रिप्ट लिखी, टीम ने एक बार, सीनियर टीम ने एक बार उसे चेक किया, फिर वॉइस ओवर से लेके एडिटिंग तक फाइनल कैप्सूल बना, और तब तक एंकर जा चुका रहता है न्यूज रूम के पास, एंकर ने रीड किया और यहाँ से एमसीआर से स्टोरी प्ले हो गई। तो ये शायद मेरे कहने के पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ी सी आसानी दिखे, लेकिन न्यूज रूम में ये हर दिन का प्रेशर होता है और एवरी डे आपको इसी स्पीड में काम करना है। कोई चांस नहीं है कि आप ढीले हैं, यानी आपको हर दिन एक बड़ा टास्क लेना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। नरेंद्र जी, ये तो बहुत अच्छी दिलचस्प बात है आपने बताई कि एक खबर की जर्नी क्या होती है, एक सिंगल लाइन खबर से लेके एक पैकेज बनने तक की। राकेश तक जी। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं रवि जी, कि आपका जो अनुभव रहा है एक चैनल को खड़ा करना, हाँ, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे चैनल आपने खड़े किए हैं और जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम रही है। हम ये चाहते हैं कि आप इस पूरे रीजनल सेटअप, यानी आज हम लोग बात रीजनल जर्नलिज्म की कर रहे हैं, तो एक पूरे रीजनल जर्नलिज्म का स्कोप आज आपको क्या दिख रहा है, जब पूरी अपनी आने वाली जो पीढ़ी है वो पूरी अंग्रेजी में पढ़ रही है, उनकी भाषा अंग्रेजी है, तो इसकी एक तो स्कोप क्या है रीजनल जर्नलिज्म का, भाषाई जर्नलिज्म का, वो आप हमें बताओ। नरेश जी, मैं ये कहूंगा कि लौट के सबको यहीं आना है, यानी अपनी भाषा में और अपनी चीजों पे। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास, खासकर भाषाई जर्नलिज्म को लेके और भाषा की ग्रोथ को लेके। एक सबसे बड़ा, मैं अगर क्रांति की बात कहूंगा तो वो कहूंगा कि डेटा आना, डेटा का इजी होना और मिलना जो है, उसने इंफॉर्मेशंस को तो शेयर किया ही किया है, साथ में इस करियर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मेरे पास अभी जो डेटा है, सबसे पहले तो ये शायद दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक बहुत बड़ा शायद आंखें फाड़ने वाला डेटा है। जैसे कि हमारे पास न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स रजिस्ट्रेशन जो हैं इस देश में, मैं अभी प्रिंट की बात कर रहा हूं, वो करीब 1,46,000 1,46,000 इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये शायद किसी लाइब्रेरी के लिए कहने के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 900 चैनल्स भारत सरकार के उसमें रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब न्यूज के लिए इनका 250 नंबर जो है अभी भी लाइव चैनल चल रहे हैं, जिनमें से 5 या 6 इंग्लिश चैनलों को हटा दे तो सबके सब भाषाई चैनल चल रहे हैं। तो आप ये समझ सके कि रोजगार का कितना बड़ा स्कोप दिख रहा है लैंग्वेज चैनल्स में। और इसी तरह से 300 रेडियो स्टेशन हैं। इन 300 रेडियो स्टेशन में, क्योंकि करीब 7 साल पहले भारत सरकार ने रेडियो चैनल्स को जो है न्यूज ब्रॉडकास्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया था, तो वहां भी जर्नलिस्ट की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि क्या अच्छी खबर है और किस तरीके से कम समय में एयर टाइम बचाते हुए न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना है,
ये रेडियो चैनल के लिए एक बड़ा इसके बाद अगर मैं कहूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो वो इंडलेस डेटा है। एवरी डे कुछ नए हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा नंबर आ रहा है डिजिटल डेटा को लेके। गूगल और केपीएमजी की एक रिपोर्ट आई है, खासकर लैंग्वेज पेनिट्रेशन को लेके, लैंग्वेज कंटेंट देखने वालों का 88% इंडिया में सिर्फ भाषाई चीजें देखी जा रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर रीजनल जर्नलिज्म या रीजनल न्यूज की कितनी बड़ी स्कोप बन रही है इसको लेके। दूसरा डेटा एक और इम्पोर्टेंट है, खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके। वो ये है कि आने वाले 18 मंथ के बीच में करीब 2 करोड़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रीजनल कंटेंट देखने वाले। तो आप समझिए कि नंबर्स जो हैं वो बहुत हाई जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो व्यू है वो है वीडियो कंटेंट को देखने के लिए। तो करीब 80% के आसपास का जो डेटा आ रहा है वो है वीडियो कंटेंट देखने वाले लोगों का। तो मुझे लगता है कि भाषाई जर्नलिज्म की बात करें, भाषा के विस्तार की बात करें, या फिर कंटेंट को लेके, वीडियो कंटेंट की लेके बात करें, तो ये बहुत बड़ा कैनवास ओपन हो रहा है। ये बड़ी चीज है। लेकिन उससे बड़ी चीज एक और है, वो है डेटा जो मेरे पास 2022 का आया है, क्योंकि नए डेटा अभी रिलीज नहीं हुए हैं 23 और 24 के। उसमें ये है कि रीजनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो कमाई की है वो 5596 करोड़ की कमाई की है, जो पिछले अगर 2017 और इसके पहले के डेटा में देखें तो 3 टाइम मोर है। तो एवरीडे रेवेन्यू का बाजार भी उतना बड़ा हो रहा है। और ब्रांडेड कंटेंट की बात करें तो हर साल उसका जो ग्रोथ रेशियो है वो 130% से लेके 150%, यानी करीब 130 से 150% की राइज है। तो रीजनल अगर मैं कहूं तो बल्ले बल्ले का टाइम है अभी, नरेंद्र जी। और आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे हिंदी हिंदी में बिजनेस चैनल आ रहे हैं। पहले तो बिजनेस चैनल सिर्फ इंग्लिश में होते थे, और वो उनकी बिजनेस की भाषा अंग्रेजी होती थी। पर अब जो है वो बिजनेस चैनल भी हिंदी में आ रहे हैं, या फिर जो बिजनेस का सेगमेंट है वो उनकी उनकी भाषा में आते जा रहा है, जैसे तेलुगु में हुआ, तमिल में हुआ, वो हो गया। तो रीजनल भाषा में बहुत सारा स्कोप हो सकता है आने वाले दिनों में। मुझे ये आपसे ये जानना है कि ये जो कन्वर्जन हुआ है पूरे मीडिया का, जैसे एक टेक्स्ट की खबर थी, बाद में उसे ऑडियो मिला, रेडियो होने के बाद उसे फिर वो ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट हो गई, और जो ऑडियो वीडियो को पहुंचाने में जो वक्त लगता था वो इंटरनेट ने खत्म कर दिया है। ये कन्वर्जन से क्या रीजनल जर्नलिज्म को फायदा हुआ है? बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी चीज ये रही नरेंद्र जी की, एक तो ये है कि अब आप किसी मोमेंट पे नहीं बंधे हो। जैसे मैं व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको टीवी देखने के लिए अपने ड्राइंग रूम में या अपने किसी घर के एक कमरे में बैठना पड़ता था। आज आपके पाम पे इंफॉर्मेशन है, डेटा आपके पास एक्सेस में है, और आप किसी भी, आप किसी टीवी चैनल की बात करें, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, किसी रेडियो की बात करें, आप अपने मोबाइल से ही कनेक्ट हैं और आपका काम भी चल रहा है, और आप कहीं ना कहीं कनेक्ट है, अपग्रेड है इंफॉर्मेशन से भी, और अपने किसी स्पेसिफिक सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो अपने सेक्टर से भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये डेटा ने ही सबसे बड़ी क्रांति की है इस पूरे नेटवर्क की। दूसरी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, वो है कि इंग्लिश चैनलों के बाद पहले तो 2 3 4 हिंदी चैनल ने बिजनेस चैनल की शुरुआत की, लेकिन अभी ये शुरुआत है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, चाहे वो मराठी हो, बंगला हो, उड़िया हो, साउथ के सभी भाषाओं की बात करें, इन सभी में बिजनेस कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट कैपिटल और लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी जो बढ़ रही है, ये उन्हें अपग्रेड कर रही है। उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं और चाहिए उन्हें, और उन्हें अपनी भाषा में चाहिए। अंग्रेजी के साथ एक चीज थी कि हो सकता है वो स्पेसिफिक वर्ग को बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करता था, लेकिन अभी भी कई बार लेमैन जितना कंफर्टेबल अपनी अपनी भाषा में होता है वो शायद उस भाषा में नहीं हो पाता। तो ये एक बड़ा स्कोप बन रहा है। और मुझे लगता है कि बिजनेस जर्नलिज्म जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बहुत बड़ा होने जा रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को लेके। ऐसे में जब कोई नया जर्नलिस्ट इस फील्ड में एंटर कर रहा है, रीजनल रीजनल जर्नलिज्म के फील्ड में एंटर कर रहा है,
तो उसे वो कौन सी 3 चीजें उसके पास होना जरूरी है जो जिससे उसका सर्वाइवल जो है उस या फिर उसका करियर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। देखिए, 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से मीडियम में और कौन से फील्ड में जाना है। जैसे डिफेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे इंडिया में बन रहा है। जितनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपांशन है, उसी तरह से डिफेंस जर्नलिज्म पहले बहुत ही नैनो लेवल पे काम कर रही थी। मुझे पता है कि मुंबई में सिर्फ उंगलियों पे गिने हुए डिफेंस जर्नलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब आपको हर बड़े सेक्टर में डिफेंस जर्नलिस्ट की सेम कहानी बिजनेस में है, सेम कहानी स्पोर्ट्स में है। इसी तरह की कहानी एक एक सेगमेंट में जा रही। तो अगर आप बीइंग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वालिफाइड जर्नलिस्ट होने के बाद, तो आपको अपने इंटर्नशिप से ही शुरुआत करनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और किस तरफ क्या करना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नरेंद्र जी कि आप ना अपनी रुचि के उस बीट को टारगेट करिए कि आपको क्या बनना है और किस तरफ जाना है। पता चला कि आप किसी राजा बाबू की तरह आज क्राइम रिपोर्टर बन रहे हैं, कल लॉ एक्सपर्ट्स बन रहे हैं और परसों आप जो है बिजनेस जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद आपकी इंफॉर्मेशन और आपके फोकस दोनों को डिस्ट्रॉय करेगा। इससे अच्छा ये है कि पहले ही डिसाइड करें कि आपको बनना क्या है और इंटर्नशिप उन संस्थानों में और उन बीट्स पे करना शुरू करिए जिससे आपका इंटरेस्ट और आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है सफल जर्नलिस्ट के लिए इंटर्नशिप जो है वो शुरुआत कर दी जाती है। हमारे वक्त में हम फिजिकल टेप लेके चला करते थे और पहले दिन ये समझाया जाता था कि कलर बार क्या है। हाँ। अब ट्रेन जर्नलिस्ट जब निकलता है तो उसको कलर बार नहीं समझना है। वो कैमरा ऑपरेट करना जानता है, वो वॉइस ओवर जान रहा है, वो एडिटिंग जानता है, कंटेंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके पूरे फॉर्मेट्स को वो अपने संस्थानों से समझ के निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए फिर यही है कि उसे किस तरफ जाना है, वो लाइन वो पहले डिसाइड करे। पहली चीज इंटर्नशिप से शुरुआत करे। दूसरी चीज उसको अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू बनाना है। जर्नलिज्म कोई 8 घंटे का जॉब नहीं होता। ये आपको डिसाइड करना है। ये एक क्रिकेट की तरह खेल है। अगर आपको पसंद है तो आप 24 घंटे इसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और आप आपका इंटरेस्ट बना रहता है। आप इंजॉय करते हैं इस धंधे को, इस बिजनेस को, इस पेशे को। मैं पेशे की बात करूं तो इस पेशे को आप इंजॉय करते हैं, तो वो आप में इंजॉय करने की क्षमता हो। तीसरी चीज ये है कि आपको लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, फील्ड में अपने कंटेंट डेवलप करने के लिए। कंटेंट अगर आपका डेवलप हो गया तो आप जर्नलिस्ट हो गए। मुझे लगता है कि ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जी। रईजा, आपने आज बहुत अच्छी 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 बातें हमको बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आपसे लगातार हम लोग बीच बीच में आपको तकलीफ देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। और हम बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि जब बिल्कुल। हमारा ये कोर्स शुरू हो, आप खुद यहाँ पर आए और हमारे बच्चों से रूबरू हो, उन्हें अपना ये अनुभव बताए। बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया। निधि, अ, इसके आगे की कार्रवाई आपकी। Yes, sir. So, due to time constraint, we'll just conclude the event here today. So, as we approach towards the end of our webinar, I'm honored to deliver the vote of thanks. I would like to extend my gratitude to our first speaker of the day, Mr. Ravi Tiwari, sir. Your insights and experiences of regional journalism have been incredibly enriching. Thank you for sharing and highlighting the intricacies of the media industry and career opportunities that is available to our students, especially in regional journalism. Your presence today has not only informed the student, but have also inspired the aspiring journalist. I'm sure the student have got a lot better clarity and understanding of journalism and its functioning. Thank you once again, sir, for your Thank you. invaluable contribution to this. A special thanks also goes to our founders and KCET Board of Trustees, as well as Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, and our Pro Vice Chancellor, Dr. Sudhir Place, sir, for making this event possible. So grateful to our HOI, Professor Narendra Bandave, sir, for conducting the event so well and for your constant support. Our thanks also extend to all the deans, directors, head of institutions, faculty members for their of various schools of Pimpri Chinchwad University, whose presence have greatly supported us. A special appreciation and thanks to our faculty members, Professor Pooja and Professor Abhishek Chaudhary, sir. A big thank you to the marketing and admission team for their relentless efforts in promoting the event and providing the necessary technical support.
Lastly, I would like to thank all the students who have attended this session with us. Thank you for your participation. For those who have some additional queries regarding the course or maybe related to the subject, should feel free to connect with us through the link that is available on our website. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day. Thank you. Thank you. Thank you. Sharon, we can end the meeting. Sharon, we can end the meeting.